Assalamualaikum, welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video we are going to solve the model paper MCQs of zoology second year. This model paper is given by Board of Intermediate Education. Start करते हैं with the first MCQ. The major inhibitory neurotransmitter of the brain. Okay, so major inhibitory neurotransmitter जो होता है वो GABA होता है, gamma aminobutyric acid. So 4D is the right answer. Next is the inflammation in kidneys due to stone is called. The answer is lithonephritis. These joint hold bones by dense connective tissue containing a fibrous joint होते हैं. इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी एसोसिएटेड विद द पार्ट ऑफ ब्रेन. सो द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोसीजरल मेमोरी इज हाइपोकैम्पस. Question number 5 is the inner cell mass of the blastocyst give rise to the placenta, the umbilical cord, the embryo, the amniotic fluid. So inner cell mass जो होता है वो embryo की डेवलपमेंट कर रहा होता है and the outer cell mass डेवलप करता है placenta को. बीटा is the right answer. MCQ number 6 है mild to severe grade of stretching or tearing of a ligament is called sprain. ये पास्ट पेपर का MCQ है, बहुत बार रिपीट हो चुका है. Agonistic behavior is a type of innate behavior, social behavior, learning behavior, instinctive behavior. The answer is social behavior. Next है a common physical change associated with aging. Increase muscle mass, improve memory, decrease bone density, increase metabolism. So the right answer is decrease bone density. Moving towards the next MCQ, it is key hormone in the female reproductive system that regulate the menstrual cycle. अच्छा, वैसे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH. यहाँ जो आंसर होना चाहिए ना वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होने चाहिए, लेकिन कोई एक चूज़ करना है तो मोस्ट सूटेबल यहाँ पे एस्ट्रोजन है. The next one is the decrease in response to repeated or continuous stimulation is called. This is habituation. इसमें हमने स्क्वेरल की एग्जाम्पल पढ़ी थी. Next is the hormones secreted by the adrenal gland in response to stress and promote the synthesis of glucose from non-carbohydrate substrate. अच्छा, वैसे तो स्ट्रेस हार्मोन दो ही होते हैं, एक तो एड्रेनलिन होता है और एक नॉन एड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहता है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बना रहा है, यानी लिपिड या प्रोटीन से ग्लूकोज को बना रहा है, तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं. बीटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट ये वर्कर्स हनी बी आर. देखो, वर्कर्स हनी बी जो होती हैं पहली बात तो फीमेल होती हैं, सेकेंडली वो स्टेरियाइल होती हैं. सो द राइट आंसर इज स्टेरियाइल फीमेल. Moving towards the next question, to maintain stability according to changing condition of an environment, this is called homeostasis. Alpha is the right answer. The process of fertilization occur in the fertilization fallopian tube या oviduct या फिर इसको uterine tube भी कहते हैं, इसके अंदर होती है, वो भी एम्प्यूला वाले रीजन में होती है. Animal excrete ammonia are called very easy MCQs. Immunotelic in male FSH promote the development of and maturation of sperm cells. जबकि फीमेल में FSH क्या करता है आप लोगों ने कमेंट में बताना है मुझे. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन द रिपीट हुआ है MCQs. फिलोपियन ट्यूब आंसर होगा. द सरफेस ऑफ अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्ज वेसिकल इज अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वेसिकल डिस्चार्ज होते हैं. ये टोटल 18 MCQ से मैंने 18 के 18 MCQ सॉल्व करवा दिए हैं. यहाँ पे एक मैंने आपको बताया कि कमेंट में आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है कि FSH का फीमेल में क्या वर्क होता है. सेक्शन बी में आप लोग देखो, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है. 9 क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें से 5 करने होंगे. अच्छा नहीं, 5 आप लोगों ने रीजनिंग करने होंगे, 4 आप लोगों ने नॉन रीजनिंग करने होंगे. टोटल आप लोगों ने 9 अटैम्प्ट करने होंगे. रीजनिंग क्वेश्चन में है वाई डू इम्पल्सेस ट्रेवल फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन. तो इसका आंसर आप लोग को चैप्टर 3 में मिलेगा. नेक्स्ट है वाई डू कार्डियक मसल नॉट फटीग. चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिया गया है. वाई डू स्टारफिश एंड जेलीफिश नॉट रिक्वायर ऑस्मो रेगुलेशन. वाई डू एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी. वैसे दोनों क्वेश्चन चैप्टर 1 से लिए गए हैं. नेक्स्ट है हाउ आर बायोलॉजिकल रिथम इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन. चैप्टर 3 का क्वेश्चन है. वाई इज क्लेविज इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल कॉल्ड मीडियोप्लास्टिक. चैप्टर 6 का क्वेश्चन है. Pancreas classified as both exocrine and endocrine gland. Why female hormonal system considered more efficient than male. ये दोनों चैप्टर 4 के क्वेश्चन है. Now non-reasoning में write a note on threshold potential difference between bone and cartilage. Mention the problem associated with kidney transplant. Define taxes. Mention positive negative taxes. Differentiate between blastula gastrula. हार्मोन की लिस्ट आपने लगानी है एंटीरियर कुछ तरीके. And list the causes of male or female infertility.
सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 आप लोगों को अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 से 4 दिए हुए होते हैं। पहला क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल को विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट विद एम्फेसिस ऑन द सेगमेंटेशन कैविटी। अगला है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी विद द डायग्राम और एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ क्रॉस ब्रिज साइकिल। जो यहाँ पर ना ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसके अलावा मेरे पास ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इफ़ यू गाइस इंटरेस्टेड टू टेक दिस क्वेश्चंस तो आप लोग मुझे बताएं, दैन मैं फिर इसकी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।